Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Top. We were doing chapter number 7 of science, which is conservation of plants and animals. And in today's video, we are starting with the next topic, which is National Park. Previous videos के अंदर we learned about the biosphere reserves. We also learned about the wildlife sanctuaries. तो उसी continuation में about the reserved areas, protected areas for wildlife आज बात करते हैं कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं. So here comes the definition of national park. These are the large forest reserves that attempt to preserve the entire ecosystem within the area, including landscape, flora, fauna and historic objects of that area. पहले बात करते हैं some of the terminologies which are coming in this definition of national park. Here comes the new word ecosystem. So ecosystem क्या होता है? Ecosystem of a place is known as all about the biotic and abiotic components of that area. किसी भी प्लेस के अंदर, किसी भी जगह पे जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके लिए कलेक्टिवली we use the term ecosystem. What the biotic and abiotic components? We have already discussed about these terms in our previous videos. Biotic means bio word refers to the life. So biotic components are the living component of our surrounding and abiotic. इसमें भी bio जो word होगा उसका मतलब होगा living beings and a word refers to the absence. So abiotic components क्या होंगे? Those components which are not living, जो non-living components हैं of our surrounding, they are known as abiotic component. तो किसी भी place पे जितने भी plants, animals, microorganisms, biotic components, including the climatic conditions, soil, temperature, water, air, इन सब के लिए हमने collectively word use किया है ecosystem. तो नेशनल पार्क्स क्या हैं? These are the reserved forest areas जहाँ पे किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है? The entire ecosystem within the area. उस पूरे एरिया के अंदर जितना भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब उस एरिया में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है. दे आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड as well as all the non-living components of that area. They are also getting the proper protection. Which includes कौन से entire ecosystem को include कर रहे हैं? इंक्लूडिंग द लैंडस्केप. उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई लैंडस्केप है, कोई रिवर है, कोई वाटर बॉडी वहाँ पर है, कोई वहाँ पे प्लेन एरिया है, कोई माउंटेन एरिया वहाँ पे कवर हो रहा है, स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, जो भी लैंडस्केप वहाँ का है. एंड ऑल द फ्लोरा दैट मीन्स जो प्लांट स्पीशीज वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, fauna that means the animal species which are living over there, as well as historic objects of that area. अगर उस एरिया के अंदर कोई historic object है, कोई historic monument अगर present है, so that also get the protection in the national parks. So national parks में complete ecosystem जितना भी उस एरिया का होगा that gets protected. Students, we learned about the biosphere reserves. Biosphere reserves बहुत बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पे biosphere reserves it may include the wildlife sanctuaries as well as the national parks. Biosphere reserves के अंदर national parks और wildlife sanctuaries भी including form के अंदर exist कर सकती हैं. जैसे हमने पचमढ़ी biosphere reserve के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे national park भी present था, वहाँ पे wildlife sanctuaries भी present थी. Then what is the difference between these biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national parks? Students, in wildlife sanctuaries, to a certain limit, human activities are allowed. Like जैसे वहाँ पे small level पे with permission of the government आप cattle grazing करवा सकते हैं. You can take the wood for firewood purpose. You can take the medicines from that area. Right? हमने बात की थी about the biosphere reserves. The biosphere reserves में तो already there are certain some tribal species are living. कुछ tribes वहाँ पे exist करते हैं. तो वो tribes अपने survival के लिए जो भी एक certain limit तक materials use करना चाहते हैं in those biosphere reserves, they are allowed to use them. Then what the national park is? National parks are those areas which are having the strict rules and regulations imposed by the government to give proper protection to the wildlife
and ecosystem of that area. Not any sort of human activities. Human activities are strictly prohibited in these areas, not allowed. वहाँ पे एनिमल की ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग नहीं हो सकती है, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, पोचिंग ऑफ एनिमल्स, लाइक किलिंग ऑफ एनिमल्स, एंड यूज ऑफ द फायरवुड और यूज ऑफ द प्लांट्स फॉर एनी मेडिसिनल पर्पज, इवन दैट इज नॉट अलाउड टू दी ह्यूमन बींग्स. कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होगी. So after getting to know about the national parks, what is the total number of national parks in India? There are almost 105 national parks exist in India, and one of them is the Satpura National Park. What are the specific features of the Satpura National Parks are? Let's see them over here. It says the Satpura National Park, it is the first reserve forest of India. ये कंप्लीट इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट था, नेशनल पार्क था, विच इज दी सतपुड़ा नेशनल पार्क. द फाइनेस्ट, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को, कौन से ऐसे मछलियाँ हैं विच आर प्रोटेक्टेड ओवर हियर. सो द फ्लोरा इज द फाइनेस्ट इंडियन टीक एज वेल एज द रॉक शेल्टर. जो फाइनेस्ट इंडियन टीक प्लांट्स होते हैं उनकी काफ़ी सारी स्पीशीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, इन दी सतपुड़ा नेशनल पार्क. सो अलॉन्ग विद दिस फ्लोरा और भी यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं. क्या क्या हैं हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज रॉक शेल्टर्स. सतपुड़ा नेशनल पार्क में काफ़ी सारे रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज रॉक शेल्टर्स. उन रॉक शेल्टर से हमें क्या पता चलता है? दीज रॉक शेल्टर्स आर द एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द एरिया. तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क एरिया के अंदर जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ थी, जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स थे, वो कैसी लाइफस्टाइल स्पेंड करते थे, उनके हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं बाय ऑब्जर्विंग दीज रॉक शेल्टर्स. देयर आर 55 रॉक शेल्टर्स इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो टोटल वहाँ पे कितने रॉक शेल्टर्स अवेलेबल हैं? 55 रॉक शेल्टर्स हैं. एंड 55 रॉक शेल्टर्स के ऊपर देयर आर सर्टेन फीचर्स. क्या हैं इन रॉक शेल्टर्स के जो एग्जिस्ट करते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर? रॉक पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द फिगर्स ऑफ. यहाँ पे उन रॉक शेल्टर्स के ऊपर बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं. एंड रॉक पेंटिंग्स के ऊपर जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, दे ड्रॉन द पिक्चर्स ऑफ hunting scenes and fighting of animals, fighting of humans with animals, dancing, playing of musical instruments and so on. डिफरेंट टाइप ऑफ ये पेंटिंग्स वहाँ पे उन रॉक शेल्टर्स के ऊपर मिली हैं, विच आर फर्दर एविडेंस कि प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती थी, हाउ द अर्ली ह्यूमन बींग्स दे यूज टू स्पेंड देयर लाइफ, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे. After it, let's talk about the tiger reserves. पहले समझते हैं कि what these tiger reserves are. As the word describes itself, tiger reserves are students those areas which give protection exclusively to the tigers. तो जितने भी नेशनल पार्क्स होते हैं उनमें कुछ टाइगर रिजर्व एरिया अलग से प्रोटेक्टेड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने. फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर. ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये बेसिकली टाइगर्स को कंजर्व करने पे ही फोकस करते हैं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टाइगर रिजर्व्स का, उसको हम आगे पढ़ेंगे. उससे पहले देखते हैं कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा था. इट वॉज जिम कॉर्बेट. सो जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इट इज कॉल्ड एज. तो इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर रिजर्व है विच इज नोन एज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. So this Jim Corbett Tiger Reserve was the first tiger reserve of India. If somebody asks you कि इंडिया में सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, then that is the Jim Corbett Tiger Reserve, which is situated in the Jim Corbett National Park. अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में. What this Project Tiger is? So there were in early time there were a lot of tiger species found on the वर्ल्ड वाइड लेवल पे काफ़ी सारी टाइगर्स की स्पीशीज़ मिलती थी. बट इन प्रीवियस फ्यू सेंचुरीज व्हाट हैपेंड इन फ्यू डिकेड्स द नंबर ऑफ दोज टाइगर स्पीशीज़ आर सरप्राइजिंगली डिक्लाइन. उनका नंबर बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता जा रहा है टाइगर स्पीशीज़ का. सो इंडियन गवर्नमेंट
it took certain steps to give proper protection to these tigers. टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए थे, एंड दैट प्रोजेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर. सो व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर इज? प्रोजेक्ट टाइगर इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव. इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट टाइगर्स. टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव स्टेप है. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोजेक्ट टाइगर्स? जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें जो प्रोजेक्ट टाइगर्स चलाते हैं प्रोजेक्ट्स, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया. इंडिया में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके नंबर को बैलेंस रखने की कोशिश करना, टाइगर्स की प्रॉपर सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स करना, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. So far students, we have discussed in detail about the three protected areas for wildlife preservation, wildlife protection. These are wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves. We also discussed in detail about the project tiger, tiger reserves क्या होते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं. Now here comes an important question, which is why do animals become extinct? जब हम इतना सारा प्रोटेक्शन दे रहे हैं एनिमल्स को, we have established these protected areas for their protection. Since why their number is decreasing? फिर भी काफ़ी सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ का नंबर कंटिन्यूसली क्यों डिक्रीज हो रहा है, वो क्यों एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्सटिंक्ट. तो जब भी हम प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट थ्री टर्मिनोलॉजीज. हम बात कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी. दीज आर एंडेमिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज? लेट्स रिकॉल ओवर हियर. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively, particularly at a particular place, जो किसी particular place पे ही मिलते हैं. और plant और animal species के लिए we use the word endemic species. And then there come the endangered species. What the endangered species are? These are those plants or animal species which are facing the danger of becoming extinct. वो प्लांट एनिमल स्पीशीज जो डेंजर में हैं, अगर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिला तो अपकमिंग फ्यू इयर्स के अंदर दे मे गेट कम्प्लीटली फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ. पूरी अर्थ से वो फिनिश हो चुके हैं. सो दोज प्लांट एनिमल स्पीशीज आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंड व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज? एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है? These are those species of plants and animals which are no more found on the earth. ये वो प्लांट एनिमल स्पीशीज हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थी अर्थ के ऊपर, बट अब वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. तो इतनी बात करने के बाद फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? इतनी प्रोटेक्शन के बाद फिर भी एनिमल्स क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? We human beings are ultimately responsible for all the disturbance in the nature. नेचर में जितना भी डिस्टर्बेंस है उसके लिए अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल. इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बींग्स इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज. तो जो इनके नेचुरल हैबिटेट हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, इफ़ दे आर डिस्टर्ब, अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, वहाँ पे इलीगल किलिंग हो रही है, पोचिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, कटिंग ऑफ ट्रीज, यूजिंग ऑफ द फॉरेस्ट, राइट? So because of these all human activities, slowly, gradually, the number of different variety of plants and animal species, they are decline. उनका नंबर continuously क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. And there are certain proofs which show कि जब उनको proper protection नहीं मिला तो कुछ ऐसे plants और animals भी हैं which have been completely get extinct from the earth. For example, डायनासोर्स के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, और आपने काफ़ी सारे टीवी प्रोग्राम्स में, कार्टून चैनल्स के अंदर देखा होगा. तो डायनासोर्स वर द एनिमल्स विच यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ. देयर वाज अ टाइम इन द जुरासिक टाइम, दैट टाइम दीज डायनासोर्स दे वर रूलिंग ऑन द अर्थ. अर्थ पे रूल करते थे, राइट? बट बिकॉज उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिला, प्रॉपर उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके सर्वाइवल के लिए अवेलेबल नहीं थी, एंड इवेंचुअली
Nowadays we cannot see any sort of dinosaurs on the earth. अर्थ पे कोई भी डायनासोर की स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है. सो डायनासोर्स, एक बर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज डोडो बर्ड. सो डोडो बर्ड एंड डायनासोर, दीज आर टू एग्जांपल्स of the animals which have been extinct, जो completely extinct हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं from the earth. So after discussing about the why do animals become extinct, बात करते हैं why do we need to conserve animals. अब इतना सारा जब हमने एनिमल कंजर्वेशन की, उनकी प्रोटेक्शन की बात की है, तो मेजर क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज देयर नीड, हम इन प्लांट्स एनिमल्स को क्यों कंजर्व कर रहे हैं. So basically we are talking about the conservation of animals over here. अगर हम animals की conservation की बात करें, students, you learned in your 7th class about the food chain and food web, right? आपने food chain और food web के बारे में पढ़ा था. What a food chain is? Food chain is a continuous process in which one organism is dependent on the other one. एक organism किस पे depend है, दूसरे पे dependent है. That means one organism is being eaten by the other one. एक organism दूसरे को खा रहा है, continuous chain का formation हो रहा है. For example, अगर छोटी सी food chain यहाँ पे हम recall करें, तो if we are taking example of a grassland, तो grassland में there is a grass available होगी. उस grass को किसने eat किया? That grass is being eaten by the grasshoppers. Grasshoppers ने उस grass को eat किया है. Then these grasshoppers can be eaten by the frogs. हो सकता है इन grasshoppers को frogs ने eat कर लिया. These frogs can be further eaten by the snakes. Frogs को snakes eat कर सकते हैं. And snakes can be eaten by the some of the birds. जो eagle है, eagle bird ने किसको खा लिया? Snakes को खा लिया. And after the death of eagle, microorganisms attack on the body of the eagle. So this is a kind of example of the food chain. ये food chain का example है. So the question arises, are only big animals, जो बड़े बड़े animals हैं, they are facing the danger to become extinct? क्या उन्हीं को एक्सटिंक्शन का, एक्सटिंक्ट होने का डेंजर वही फेस कर रहे हैं? What about the small animals? These small animals, though they are small in size, but the importance cannot be denied in the ecosystem. किसी इकोसिस्टम में हम इन एनिमल्स की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन कि किसी इकोसिस्टम में जितने भी फ्रॉग्स हैं, दे हैव बीन कम्प्लीटली बिकम एक्सटिंक्ट, वो वहाँ से फिनिश हो चुके हैं. तो अगर फ्रॉग्स नहीं होंगी तो हाउ स्नेक्स विल बी एबल टू सर्वाइव. स्नेक्स कैसे सर्वाइव करेंगे? और जब स्नेक्स सर्वाइव नहीं करेंगे तो ईगल्स को अपना फूड कैसे मिलेगा? एंड अगर फ्रॉग्स फिनिश हो जाएंगे तो वहाँ पे ग्रास होपर्स का नंबर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट ग्रास होपर्स, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर इन अ ग्रास लैंड कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ऑल द प्लांटेशन. वहाँ पे जो भी वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, उन सबको ये ग्रास होपर्स क्या कर देंगे? कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे. सो इन दिस वे द इकोसिस्टम ऑफ दिस एरिया कैन बी डिस्टर्ब. So here comes the importance of an ecosystem, which says that the protection of all kind of biotic and abiotic organism factors, components of the environment, they should be properly utilized, properly save करना चाहिए to save or to make a proper balance in an ecosystem. ecosystem को properly balanced form में रखने के लिए we need to protect or preserve or conserve these animals. हमें animals को conserve करना पड़ता है. So that's all for today's video. Time to get the questions for your homework. So the first question I'm giving you this one. Write down this question in your own language, that why do animals become extinct? The second question is here again. After watching this video and getting explanation by the teacher, you are supposed to frame the language of this answer, that why do we need to conserve animals. हमें animals को क्यों conserve रखना चाहिए? Examples के साथ you are supposed to answer this question also. I am giving you few more questions, students. The question number 3 for today's homework, that is define ecosystem. आपको ecosystem की definition यहाँ पे देनी है, what the ecosystem is. And then question number 4 is that explain the project diagram. Explain the project diagram.
प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ के अंदर. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. And few topics are still remaining in this chapter. We'll cover those chapter topics in our next video. Till then, thanks for watching.